ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਟੈਟਿਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟੈਟਿਕ ਕਲਾਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ MCQs ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ NTT ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ SEC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟੈਟਿਕ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ यानी कि ILO ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ILO ਦਾ ਹੈ ਜੈਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ILO ਵੀ ਹੈ। ILO 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਗਾਈ ਰਾਈਡਰ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੰਡਨ UK ਦੀ, काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट रहेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हैडकुआटर, इस तो इलावा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हैडकुआटर, कॉमनवैल्थ का हैडकुआटर भी लंडन के विच है। वाशिंगटन DC USA की कैपिटल भी है। इस तो इलावा वाशिंगटन के विच वर्ल्ड बैंक का हैडकुआटर है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा IMF का हैडकुआटर भी वाशिंगटन DC के विच ही है। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੈਰਿਸ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੋਰਟ ਲੂਇਸ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਪੋਰਟ ਲੂਇਸ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੋਰਟ ਲੂਇਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਮੋਰੀਸ਼ੀਅਸ ਕੈਪੀਟਲ ਪੋਰਟ। ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਰੂਪੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੈਨੇਗਲ ਕੈਪੀਟਲ ਡਕਾਰ ਹੈ। ਸੈਨੇਗਲ ਕੈਪੀਟਲ ਡਕਾਰ, ਕਰੰਸੀ ਫਰੈਂਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਯੂਗਾਂਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਾਲਾ, ਕਰੰਸੀ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਕੈਪੀਟਲ ਹਨੋਈ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਡੋਂਗ ਚੱਲਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਕਿਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ? ਤਾਂ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਕਿਸ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ 2020 ਦੇ? ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਅਵਾਰੇ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਅਵਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਵਿਆ ਕਾਕਰਮ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਲਵਲੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਪਿਕਾ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੈਟੀ ਔਰ SS ਰਣੀਕੇ ਰੈਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਰੇਡੀਓ ਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। 13 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਰੇਡੀਓ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਰੇਡੀਓ ਡੇ 13 ਫੈਬਰਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ METI, METI, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂ IT ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਲਵੇ? ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਲਵੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਵੇ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ IT ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਵੇ ਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੇਨਈ, ਚੇਨਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੰਬਈ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਟੀ ਮੁੰਬਈ ਹੈ। हैदराबाद, हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे स्थित है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है। हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे बसया हुआ है। हैदराबाद ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैडिटेशन सेंटर बनाया गया सी। हैदराबाद दे विच वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैडिटेशन सेंटर ओपन किया गया सी। नेक्स्ट है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम किहड़े शहर दे विच है? स्टेडियम्स पूछे जाते हैं डायरैक्टली सिटीज़ दे विच इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम किहड़ी सिटी दे विच है? तो एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, बेंगलुरु करनाटका दे विच है। थर्ड ऑप्शन बेंगलुरु करनाटका दे विच। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बाकी ऑप्शनस दे विच, फॉर एग्जांपल हैदराबाद, हैदराबाद दे विच अगर आप कोई स्टेडियम डिस्कस करना होवे तो लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद दे विच। भुवनेश्वर दे विच, अच्छा भुवनेश्वर दे विच जिहड़ा स्टेडियम है ये डायरैक्ट पूछा भी जाएगा कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम चांसिस ज़्यादा ने क्योंकि तुहानूं याद होएगा आप डिस्कस किया हुआ करंट अफेयर सैशन दे विच कि 2023 दे हॉकी वर्ल्ड कप है इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया उड़ीसा दे विच होस्ट करेगा और उड़ीसा की दो सिटीज़ दे विच, एक भुवनेश्वर और दूसरी रोयकेला। भुवनेश्वर और रोयकेला। तो भुवनेश्वर दे विच जिहड़ा ईवेंट होस्ट किया जाएगा वह कलिंगा स्टेडियम दे विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है जी। अगर चेन्नई की गल करते हैं, चेन्नई दे विच नेहरू क्रिकेट स्टेडियम है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है बैंकिंग हुण है तुहाडी उंगलां ते, या कहांगे बैंकिंग एट योर फिंगर टिप्स। बैंकिंग एट योर फिंगर टिप्स यह किस बैंक की टैगलाइन है? किस भुगतान बैंक यानी कि पेटीएम बैंक की टैगलाइन, सॉरी पेटीएम नहीं, पेमेंट बैंक की टैगलाइन है। तो यह एयरटेल पेमेंट बैंक। फर्स्ट ऑप्शन एयरटेल पेमेंट बैंक की टैगलाइन है बैंकिंग एट योर फिंगर टिप्स। ठीक है जी। इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। 2017 दे विच इसनूं बनाया गया सी। न्यू दिल्ली दे विच हैडकुआटर है और सुनील भारती मित्तल इस दे हैड ने। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर गल करते हैं भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक, सैकेंड ऑप्शन, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अगर आप गल करते हैं हैडकुआटर दिल्ली के विच इसका भी। इस तो इलावा आपका बैंक आपके द्वार, आपका बैंक आपके द्वार इस बैंक की टैगलाइन है। जियो पेमेंट बैंक हैडकुआटर मुंबई के विच है। जियो पेमेंट बैंक की अगर आप गल करते हैं टैगलाइन की, तो योर एवरीडे बैंक फॉर ऑल योर पेमेंट्स, योर एवरीडे बैंक फॉर ऑल योर पेमेंट इसकी टैगलाइन है। पेटीएम पेमेंट बैंक की गल करते हैं हैडकुआटर यदा पूछा जा सकता है क्योंकि डिफरेंट है, नोएडा के विच है। पेटीएम पेमेंट बैंक हैडकुआटर नोएडा के विच है और इसकी टैगलाइन है सिंपलीफाइंग पेमेंट फॉर इंडिया, सिंपलीफाइंग पेमेंट फॉर इंडिया। नेक्स्ट है इन्हां विचों किहड़े शहर विच जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, आप पहले भी डिस्कस किया सी कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम दे विच। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट कित्थे है? देहरादून दे विच है। सैकेंड ऑप्शन देहरादून दे विच है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, उत्तराखंड देहरादून दे विच। गुवाहाटी की अगर आप गल करते हैं, गुवाहाटी असम की सिटी है। गुवाहाटी दे विच जिहड़ा
एयरपोर्ट की अगर आप गल करते हैं तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट जो कि रीसेंटली अदानी ग्रुप ਨੂੰ भी दिता गया, याद होएगा ਸਾਨੂੰ लीज ਦੇ ਉੱਤੇ दिता गया 6 एयरपोर्ट्स ਨੂੰ, जिन्हां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਹਾਟੀ एयरपोर्ट भी एक है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता के जो फेमस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम देते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता के है। कोची के कोचीन एयरपोर्ट है, डायरैक्टली याद रखेंगे कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोची के। नैक्सट है नीति आयोग के चेयरपर्सन, नीति आयोग बारे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग के हैड कौन ने, चेयरपर्सन कौन ने, तो नीति आयोग के चेयरपर्सन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि नीति आयोग जो कि प्लैनिंग कमीशन रिप्लेस करके बनाया गया सी, प्लैनिंग कमीशन 2015 के विच रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया और इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर रखे गए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, तो इस टाइम चेयरपर्सन भी कौन ने, नरेंद्र मोदी। इस तो इलावा अमिताभ कांत CEO ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अमित शाह बेसिकली होम मिनिस्टर ने, इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने। राजीव कुमार CEO ने वाइस चेयरमैन ने नीति आयोग के। नैक्सट है सिंगूर डैम किस राज्य दे विच स्थित है, सिंगूर डैम कित्थे लोकेटेड है, तो सिंगूर डैम लोकेटेड है, फोर्थ ऑप्शन तेलंगाना दे विच मंजीरा रिवर दे उत्ते, तेलंगाना दे विच लोकेटेड है और मंजीरा रिवर दे उत्ते है। ठीक है जी। करनाटका की गल करते हैं, पहले डिस्कस किया सी कृष्णा राजा सागर डैम इंपोर्टेंट रहेगा, कावेरी रिवर के उत्ते करनाटका दे विच। इस तो इलावा आप डिस्कस करते हैं गुजरात के बारे, आप पहले डैम्स नहीं डिस्कस किए और गुजरात एक ऐसी स्टेट है जिथे डैम्स के उत्ते कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंपोर्टेंट डैम है सरदार सरोवर डैम। ठीक है, सरदार सरोवर डैम अगर आप गल करते हैं नर्मदा रिवर के उत्ते है, पूछा जाता है सरदार सरोवर डैम। इस तो इलावा वैलिंगटन डैम, बेसिकली वैलिंगटन डैम एक ऑस्ट्रेलिया के विच भी है, पर जिहड़ा यह वैलिंगटन डैम है यह कालवा रिवर, गुजरात कालवा रिवर के उत्ते लोकेटेड है। रंजीत सागर डैम भी है गुजरात के विच। इस तो इलावा कमलेश्वर डैम है, एक हिरन रिवर है, हिरन रिवर के उत्ते कमलेश्वर डैम। एक साबरमती रिवर के उत्ते डैम है, साबरमती रिवर के उत्ते धरोई डैम, ये पूछा जाता है गुजरात के विच है धरोई डैम साबरमती रिवर के उत्ते। और उकाई डैम याद रखेंगे ताप्ती रिवर के उत्ते है गुजरात के विच। ठीक है जी। नैक्सट है लक्षद्वीप की राजधानी की है, यूटीज के विचों कैपिटल करंसीज कैपिटल अगर आप गल करते हैं तो लक्षद्वीप की कैपिटल है कारावती, फर्स्ट ऑप्शन कावारती। ठीक है जी। इस तो इलावा लक्षद्वीप की अगर आप गल करते हैं तो लक्षद्वीप के विच भी कैपिटल कारावती। पोर्ट ब्लेयर की अगर आप गल करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है, अंडेमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। और लद्दाख की कैपिटल है लेह। लद्दाख एक ऐसी यूटी जिसदे विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स ने लेह और कारगिल, और कैपिटल की है लेह, याद रखेंगे। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का मुख्य दफ्तर कित्थे है, हैड ऑफिस NDB का, तो NDB का हैडकुआटर है शंघाई चाइना के विच, पहले डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक आप। ब्रिक्स कंट्रीज़ का बैंक है, 2014 के विच बनाया गया सी। इसके प्रेसिडेंट ने मार्कोस त्रियोजो, बिल्कुल रिसेंटली अपॉइंट किए गए ने मार्कोस त्रियोजो, नाम इंपोर्टेंट बनेगा। अच्छा, वियना ऑस्ट्रिया के विच किसका हैडकुआटर आप डिस्कस किया सी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हैडकुआटर वियना ऑस्ट्रिया के विच। इस तो इलावा ओपेक का हैडकुआटर भी है, अगर आप गल करते हैं ओपेक की, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, हैडकुआटर वियना के विच।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਔਰ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, यानी कि MSME मिनिस्टर कौन है? तो MSME मिनिस्टर ने नितिन गडकरी। फर्स्ट ऑप्शन नितिन गडकरी MSME मिनिस्टर ने। ठीक है जी। MSME मिनिस्ट्री तो इलावा इन्हों लवे अगर आप गल करते हैं एक होर इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और MSME मिनिस्ट्री दोनों नितिन गडकरी लवे ने और यह लोक सभा MP ने नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP भी ने। नरेंद्र सिंह तोमर अगर गल करते हैं काफ़ी इंपोर्टेंट मिनिस्ट्रीज इन्होंने लवे। सब तो पहले इन्होंने लवे जी मिनिस्ट्री है वह है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। दूसरी इन्होंने लवे पंचायती राज मिनिस्ट्री। तीसरी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और चौथी इन्हों हरसिमरत कौर बादल के रेजिग्नेशन तो बाद दी गई सी फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री। इस तो इलावा यह मोरियाना मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने। प्रकाश जावेदकर लवे कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री। इस तो इलावा फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री और इन्होंने लवे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है। राज्य सभा MP ने ये महाराष्ट्र तो पीयूष गोयल की गल कर रहे थे। पीयूष गोयल लवे मिनिस्ट्रीज ने। अगर प्रकाश जावेदकर की गल करते हैं प्रकाश जावेदकर लवे इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। इस तो इलावा इन्होंने लवे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस तो इलावा इन्होंने लवे हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है, ये भी राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र। गोल गुंबज किस राज दे विच स्थित है? मोनूमेंट्स दे विच गोल गुंबज की अगर आप गल करते हैं तो गोल गुंबज कित्थे लोकेटेड है? तो गोल गुंबज लोकेटेड है थर्ड ऑप्शन कर्नाटका दे विच। डिफरेंट मोनूमेंट्स पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल दे विच विक्टोरिया मैमोरीयल है। इस तो इलावा हावड़ा ब्रिज है। ये पूछे जाते हैं डायरैक्टली क्वेश्चन कि हावड़ा ब्रिज कित्थे है, विक्टोरिया मैमोरीयल कित्थे है। इस तो इलावा अगर आंध्र प्रदेश की गल करते हैं चार मीनार आंध्र प्रदेश दे विच है। MP दे विच तां काफ़ी ज़्यादा मोनूमेंट्स ने अगर आप गल करते हैं तो MP दे विच खाजुराहो टेंपल है। ठीक है। सांची स्तूपा, गवालियर पोर्ट हो गया, ओरछा पोर्ट्स हो गए। ठीक है। इस तो इलावा कर्नाटका दे विच भी अगर आप गल करते हैं गोल गुंबज तो इलावा हम्पी है। ठीक है। मैसूर कहांगे कि मैसूर सिटी है जिथे काफ़ी ज़्यादा फेमस चीज़ां ने। इस तो इलावा बेलगांव फोर्ट, गो मातेश्वर टैंपल पूछा जाता है कित्थे लोकेटेड है? कर्नाटका दे विच। नेक्स्ट है कायरो किस देश की राजधानी है? कैपिटल करंसी दे विचों कायरो कैपिटल है किस कंट्री की? तो मिस्र, यानी कि इंग्लिश दे विच अगर आप गल करते हैं इजिप्ट की कैपिटल है मिस्र। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं नाइजीरिया कैपिटल अबूजा, करंसी नायरा चलती है। नाइजीरिया कैपिटल अबूजा, करंसी नायरा। आइसलैंड आप डिस्कस कर चुके हैं रेकजैविक कैपिटल है, करंसी करोना चलती है। डेनमार्क कैपिटल कोपनहेगन है, करंसी क्रोन चलती है। और इजिप्ट कैपिटल कायरो है, करंसी पाउंड चलती है। नेक्स्ट है सुचिंद्रम थियोर बर्ड सेंचुरी। सुचिंद्रम थियोर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु दे विच है। कित्थे है? तमिलनाडु दे विच। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं डिफरेंट बर्ड सेंचुरीज की, इस तो इलावा अगर डिस्कस करनी ने तो तमिलनाडु दे विच ही पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी पाई जाती है। इंपोर्टेंट है पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु दे विच है। ठीक है। हरियाणा दे विच सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है। ठीक है। इंपोर्टेंट रहेगी।
इस तो इलावा असम और अरुणाचल प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਫੇਮਸ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੋਬੀਤੋਰਾ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਬੀਤੋਰਾ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਲੋਏ ਖਾਵਾ, ਪੋਬੀਤੋਰਾ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਲੋਏ ਖਾਵਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਮਲਾਂਗ, कमलांग, दिबांग, मिहाओ। कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मिहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अरुणाचल प्रदेश दे विच है। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस फील्ड दे विच है? बेसिकली डिफरेंट अवार्ड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करते हैं इंटरनेशनल लैवल की तो ऑस्कर हो गया, ठीक है, या ग्रैमी अवार्ड्स हो गए, तो इन्हों के फील्ड भी पूछ लए जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡਸ ਨੇ ਫॉर एग्जाम्पल शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़, ਇਹ किस फील्ड ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, किस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ साइंस एंड टैक ਦੇ फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पुलजीकर अवार्ड पूछा जाता है, पुलजीकर अवार्ड पत्रकारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है, ठीक है। सुनंदा सम्मान हो गया कला ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है, उड़ीसा सरकार ਦਿੰਦੀ है सुनंदा सम्मान, ठीक है। तानसेन अवार्ड हो गया तो तानसेन अवार्ड भी कला के फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है और MP सरकार ਦਿੰਦੀ है। इस तरीके नाल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एयरपोर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कित्थे है? तो यह लखनऊ ਦੇ ਵਿੱਚ है। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है जी। इसी तरीके नाल मुंबई के अगर एयरपोर्ट की गल करते हैं, आपको पता ही है मुंबई के जिहड़ा एयरपोर्ट है कि इस नाम नाल जानिया जाता है, वह जानिया जाता है फेमस मराठा लीडर। अगर आप गल करते हैं मुंबई महाराष्ट्र मराठा, तो ठीक है, तो महाराष्ट्र के फेमस मराठा लीडर के नाम तो जानिया जाता है मुंबई का एयरपोर्ट का नाम। कमेंट बॉक्स में तुसीं दसोगे, ठीक है जी। इस तो इलावा अहमदाबाद आप हुणे डिस्कस करके हटे सी। अहमदाबाद का जिहड़ा एयरपोर्ट है ये किन्हां दे नाम तो जानिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के उत्ते, ठीक है जी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट डायरैक्टली चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, याद रखांगे। वर्ल्ड रेबीज़ डे हर साल ऑबजर्व किया जाता है। कदों ऑबजर्व किया जाता है वर्ल्ड रेबीज़ डे? तो यह 28 सैप्टेंबर 28 सैप्टेंबर नूं वर्ल्ड रेबीज़ डे के तौर के उत्ते ऑबजर्व किया जाता है, ठीक है जी। रेडियो डे डिस्कस किया और रेबीज़ डे डिस्कस किया, दोनों इंपोर्टेंट रहेंगे, याद रखांगे। नेक्स्ट है इंटरपोल का हैडकुआटर कित्थे है? डिफरेंट हैडकुआटर्स के विचों इंटरपोल, जिसनों आप कहने इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल नूं शॉर्ट फॉर्म दे विच, फुल फॉर्म अगर आप गल करते हैं इंटरनेशनल पुलिस है, यह लियोन फ्रांस के हैडकुआटर है यानी कि 4th ऑप्शन, और 1923 दे विच बनाया गया सी, 1923 दे विच बनाया गया सी, ठीक है जी। ब्रुसल्स बेल्जियम दे विच यूरोपियन यूनियन का हैडकुआटर है, ठीक है। नाटो का हैडकुआटर है। जर्मनी बेसिकली बर्लिन दे विच कोई हैडकुआटर नहीं है, लेकिन मुनीच जर्मनी की एक सिटी है मुनीच, उत्थे शूटिंग फैडरेशन का हैडकुआटर है। शूटिंग फैडरेशन का हैडकुआटर म्यूनीच दे विच है, ठीक है जी। इस तो इलावा लॉजेन सिटी है जिहड़ी बेसिकली, वैसे अगर आप गल करते हैं स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की 2 सिटीज़ कई बार पूछी जाती ने, एक जेनेवा एक लॉजेन। जेनेवा दे विच भी डिफरेंट हैडकुआटर्स ने और लॉजेन दे विच भी ने, पर लॉजेन दे विच जिहड़े हैडकुआटर्स ने ज़्यादातर उन्हां दे विचों ज़्यादातर स्पोर्ट्स फैडरेशनस के हैडकुआटर्स ने। फॉर एग्जाम्पल चैस की जिहड़ी फैडरेशन है फाइड, उसका हैडकुआटर लॉजेन दे विच। हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फैडरेशन का हैडकुआटर लॉजेन दे विच। बॉक्सिंग स्विमिंग हो गया, आर्चरी हो गया, ठीक है। इसी तरीके नाल गोल्फ का हैडकुआटर इंटरनेशनल गोल्फ एसोसीएशन, इंटरनेशनल जूडो एसोसीएशन का भी, टेबल टैनिस की जिहड़ी एसोसीएशन है इसका हैडकुआटर भी लॉजेन दे विच है, ठीक है जी। तो कहांगे कि ज़्यादातर स्पोर्ट्स फैडरेशन के हैडकुआटर कित्थे ने? लॉजेन स्विट्जरलैंड दे विच, ठीक है। तो याद किहड़े करांगे? जिहड़े नहीं है, जिहड़े लॉजेन दे विच नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन की अगर आप गल करते हैं, ठीक है, बैडमिंटन का हैडकुआटर कोलालंपुर मलेशिया के विच है,
ठीक है। इस तो इलावा शूटिंग की आप हुणे डिस्कस किया मुनीच जर्मनी के शूटिंग फैडरेशन का हैडकुआटर, इसी तरीके हैडकुआटर डिस्कस करते चलना। ठीक है जी, तो अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। सैशन नूं लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।